Very good afternoon, everyone. Okay, guys. So hope all of you are doing well and studying well. How was the ATS, everyone? Yes. Am I audible to all? Yes, ma'am. Hmm. Then how's the ATS? कैसा हुआ एग्जाम? प्रैक्टिस टेस्ट था आपका ना शायद अभी या फाइनल पेपर हो चुका है? यस. ओके. एग्जाम के नाम पे तो वैसे भी कोई. हाँ अशोक. यस. क्या कह रहे हो बेटा? फाइनल फाइनल हो चुका है ना. हाँ वही मुझे लगा क्योंकि 11th वालों का भी प्रैक्टिस हुआ है. आपका फाइनल हुआ है शायद ना. राइट. हाँ जी. Then how was the paper? How was the exam? ये वाला curve explain करना है. Voice is breaking. Okay, just give me a sec. एक second. Video is lagging too. Okay, एक second बेटा. Okay, is it fine now? Yes, everyone. Audio, video fine. है ना? AITS has been started बच्चे. AITS. Right. Yes. Okay. Right. तो update yourself बच्चे. Right. AITS तो सबको देने हैं. First AITS हो चुका है. Right. कितनों ने दिया है अटेम्प्ट? कितनों ने? हाँ वो तो दिया था. अच्छा वो तो दिया था. सही. राइट. तो इजी था बच्चे पेपर. राइट. इट वाज सेकंड. एग्जैक्टली इट वाज सेकंड. या राइट. आपका 12th का आईटीएस तो कब से स्टार्ट हो गए? 11th की आईटीएस अब होने वाले हैं आगे. 507 आए. गुड गुड गुड. राइट. तो इसीलिए अब ये आईटीएस के पहला पेपर तो आपका पहले गैप पे हो गया था. अब तो ये 15-20 डेज बाद हुआ है आपका पेपर. राइट. सो इसीलिए अच्छे से स्कोर करो उसके अंदर आईटीएस में. राइट. एंड टेस्ट सिंपल था. राइट. उसके जो डाउट्स हैं वो मुझे मिल जाएं टेलीग्राम पे सबके. राइट. सॉल्व द आईटीएस अगेन एवरीवन. Right, and I want the response of that. Correct. Okay, guys. So we were talking about the organism and population in the previous session. Right. So let's talk about that. उसके बारे में start करते हैं. Just give me a sec. एक second. Okay, guys. I hope this is visible to everyone. So we were talking about the effect of the abiotic factors. हम abiotic factors के effect की बात कर रहे थे. Right. So let's continue from that part. Now, any specific doubt first of all till that point? Yeah, Anshika, I'm just explaining that, Bacha, just wait. I'm going to give you a quick recap of the things we have studied. Okay, so we were talking about the organisms. Population हमने complete किया था. Organisms के बारे में हमने start किया था. Right, so let's continue from that point. उससे continue करते हैं. First of all, guys, फटाफट से जल्दी से बताते चले जाओ कुछ points इसमें. Right, which microbe is commercially utilized? Which microbe is commercially utilized to form the cholesterol lowering agent? Which microbe is commercially utilized to form the cholesterol lowering agent? Yes, cholesterol lowering agent. फटाफट से आंसर मिले. कौन से माइक्रोब को यूज करते हैं हम? मोनास्कस परप्यूरस. वेरी गुड जैस्मिन. राइट. मोनास्कस परप्यूरस हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की फॉर्मेशन करने के लिए. राइट. बिल्कुल ठीक है. राइट. which microbe is utilized in the rice field for increase in the nutrient content of the soil? Utilized in rice field to increase the nutrient content in the soil. राइट. कौन सा यूज कर रहे थे हम?
cyanobacteria, right? That is Azolla pinnata. स्पेसिफिक होना है ना आंसर के साथ, तो वी टॉक अबाउट अजोला पिन्नाटा, राइट? अजोला पिन्नाटा की बात की थी। और इंडिया में कौन सा यूज करते हैं? इंडिया में हम स्पेसिफिकली यूज किसको करते हैं? ओलोसेरा। रिमेंबर वी यूज द ओलोसेरा इन द केस ऑफ द इंडिया, राइट? ओलोसेरा हम यूज करेंगे इंडिया में, राइट? अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैव द यूटिलाइजेशन ऑफ अजोला पिन्नाटा इन द राइस फील्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट। बिल्कुल ठीक है, राइट? नेक्स्ट उसी के बाद, right, in unpredicted environment organisms of the large body size are growing, right? What selection model do organisms are following? What selection model do organisms are following? Selection model do organisms are following? Yes, very good. R selection, absolutely correct. R selection model organisms are going to follow, right, if they are having this particular interaction. What is ecoline? What is ecoline? Ecoline किसे define करते हैं? Remember, it's a transient population in the overlapping zone of the two ecotypes. Fine, right? Population between the two ecotype. Very good, Lovepreet. Right. अच्छा, what is niche? Niche कैसे define करोगे? Borderline of two ecotypes, बच्चा, धनंजय, phenotype नहीं. Right? How will you define niche, guys? Quickly. Exactly, very good. Right, function zone of the habitat is being defined as the आपका niche, बिल्कुल ठीक है, niche define करते हैं. Right, state yes or no. If an organism is living in a specific habitat, do it share the multiple niche or the single niche? Do it share the multiple niche at a point of time in the single habitat? Single, very good. Right, is going to share the single niche. Single आपका center को share करेगा, लेकिन an organism can have multiple niche. An organism can have multiple niche share कर सकता है, but in the different habitat. Right, different habitat में multiple niche को share कर सकता है, लेकिन एक habitat में at a specific point of time वो share करता है one niche को. बिल्कुल ठीक. Right, अब हमने यहाँ पे बच्चे last time पे factors define किए थे. Right, while defining about the factors we first stated about, right, हमने सबसे पहले state किया था इसके अंदर, right, for the first, that is the temperature. तो हमने कहा था temperature is one of the most relevant factor which is affecting the organism growth, because enzyme kinetics को, basal metabolism को, right, control करने वाला जो हमारे पास factor है, that's being the temperature. Right, फिर हमने कहा था every organism जो survive करता है वो tolerance ability के basis पे उसे eurythermal और xenothermal category में categorize किया था. Right, xenotherms हमारे पास कौन थे जो tolerate नहीं कर सकते थे fluctuations को, which have a very limited distribution. Right, लेकिन वहीं पे हमें widespread distribution किसका मिल रहा था? eurytherms और eurythermals का. Right, then we will say based on the survival in the different zones with respect to temperature. तो हमने कहा बच्चे जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, because the temperature declines, and with the decline in the temperature the organism density or the population density also decreases. Right, with decrease in this population density or organism density, if we will say, तो हमने कहा यहाँ पर ये चार्ट कि अगर हम यहाँ ट्रॉपिकल पे जाते हैं तो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और टेम्परेट से आर्टिक और तुंद्रा एरिया होता है हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन क्या होगी? डिक्लाइन होगी. तो ऑन दैट ग्राउंड इफ यू विल से, जो हमारे पास ए पॉपुलेशन है उससे मैंने नाम दिया बच्चे मेगाथर्म, जो हायर टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास आ गया मीजोथर्म्स, देन वी हैव द माइक्रोथर्म्स, एंड द लास्ट वन दैट इज, ये डिसअपीयर कैसे हो गया यहाँ से? राइट, दिस इज कॉल्ड एज द हेकिस्टोथर्म्स. राइट, इसको हमने डिफाइन किया हेकिस्टोथर्म्स. राइट, ये हमने ग्रुपिंग यहाँ पर बना दिया. तो अगर हम गए इक्वेटर टू पोल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड इक्वेटर टू पोल ऑन द आपका वर्टिकल एक्सिस, दैट इज व्हाट वी डिफाइन इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ. राइट, तो हमने पॉपुलेशन डेंसिटी डिफाइन किया. ठीक है अंशिका, क्लियर बच्चे? राइट, तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा उसके मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के बेसिस पे. सेकेंड, अब हमने पढ़ा था वाटर के बारे में. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. राइट, उसी के बेसिस पे हमने कहा सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे तुंद्रा आर्टिक एरिया बचा पोलर साइड,
राइट, दैट्स एन एरिया। तो हमारे पास ट्रॉपिकल, जैसे हम जाते नहीं है बेसिकली लाइन ऑफ कैंसर और इसके अराउंड, कैप्रिकॉन के अराउंड, तो हम कहते हैं ना यहाँ पर वी आर मूविंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द लास्ट वन, दैट्स आर्टिक और तुंद्रा एरिया, दैट्स अ पोलर एरिया, एंटार्क्टिक वाला एरिया जो आ गया हमारे पास। राइट, उसे हम डिफाइन करते हैं। राइट, तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने सर्वाइव किया बच्चे। ऑर्गेनिजम्स हमारे 3 जोन में सर्वाइव हुआ, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड द सलीन एनवायरनमेंट के अंदर। राइट, वहीं पर सॉल्ट टॉलरेंस के बेसिस पे उसे हमने कैटेगराइज कर दिया स्टीनोहेलिन एंड यूरीहेलिन के अंदर। देन वी विल से लाइट का आपका रोल फॉर द बेसिस ऑफ दिस कंप्लीट प्लांट्स के लिए, राइट, फोटोसिंथेसिस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, सीड जर्मिनेशन, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमने स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा था। हु विल टेल मी स्ट्रैटिफिकेशन क्विकली? Right, unmute yourself and say the answer, guys. Right, what is a stratification? Stratification किसको define करते हैं? Yes, everyone. Stratification, remember arrangement, right? Stratification हमारे पास क्या था? That's an arrangement of organisms ना, हमने organisms का arrangement किया था, right? उनकी height के basis पे, canopy के structure के basis पे, याद आ रहा है? सब कुछ को भूल गए हो? पढ़ा एक बार घर जाके कि नहीं पढ़ा ये वाला point? राइट, तो वी विल से इन दिस कंडीशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, राइट, हमने ये डिफाइन किया था कि वी हैव दिस पॉइंट दैट इज दी, राइट, आप कैनोपी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अरेंज करते हो, लाइक इमर्जेंट लेयर, मिडल कैनोपी, अंडर कैनोपी, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो हमने कहा था जहाँ डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस मिलती हैं, राइट धनंजय, जहाँ सोलर रेडिएशंस मिलती हैं उन्हें आप कहते हो हेलियोफाइट्स, राइट। और वहीं पर शियोफाइट्स कौन से हो जाता है हमारे पास? शेडेड प्लांट्स, जहां पर लाइट का हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले हो सकता है, राइट। तो उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया। फिर हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चे नाम दिया था स्ट्रैटिफिकेशन, व्हिच इज द स्पेसिफिक फीचर फॉर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। देन वी कैटेगराइज अबाउट द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम स्ट्रैटिफिकेशन नहीं, ओनली शोन नहीं बच्चे, स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ट शोन इन द ट्रॉपिकल जोन, राइट। स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन द ट्रॉपिकल जोन में, बेस्ट ऑब्जर्व होता है, राइट। लेकिन वहीं पर हमारे पास सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन के अंदर अगर हम जाते हैं बेटा, राइट, तो उसके अलावा हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन कम होता चला जाता है। तो मैक्सिमम 5 लेयर्स जो मुझे मिलती है ना, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, ठीक है। हाँ जी, हु इज सेइंग थिंग? यस अभिनव, ओके रियम, राइट। नाउ फटाफट से इसमें मुझे बताते चले जाओ, इन विच ऑफ द जोन डिकम्पोजिशन इज मैक्सिमम इन द रेट? In which of the zone decomposition is found maximum? Quickly. Benthic. Very good. Benthic zone. Right. तो हमने कहा benthic zone is being the one where decomposition maximum. Where is the highest productivity is observed? Where is the highest? Euphotic. Littoral. Highest productivity littoral. Right. Among the limnatic, then it is euphotic. राइट, अगर मैं अमंग लिम्नाटिक पूछूंगी तो यूफोटिक, अदरवाइज हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तो लिटोरल में मिलती है ना हमें, वहाँ टॉल प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। उसी के साथ विद मूविंग टू द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सी, राइट, लाइट इंसिडेंस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? लाइट इंसिडेंस डिक्रीजेस with decrease in the light intensity, right, or incidence, the rate of the productivity decreases or increases? Decreases. Very good. Rate of the productivity as well decreases. तो ये हमने इसके बेसिकली जोन यहाँ पर डिफाइन किए थे, और ऑर्गेनिज्म के हमने बताया था कि हमें इसमें कैसे अरेंज करेंगे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी को, राइट। तो अब एक पॉइंट याद रखना, रेड एल्गी इज नॉट ओनली फाउंड इन द डेप्थ आल्सो, दे आर आल्सो फाउंड इन द सरफेस ऑफ द वाटर, बट मोस्ट अबंडेंटली दे आर फाउंड इन द डेप्थ बिकॉज ऑफ द क्रोमैटिक एडाप्टेशन प्रोसेस। क्रोमैटिक एडाप्टेशन की वजह से हमें यहाँ पर डेप्थ पे ज्यादातर मिलते हैं, और एनिमल्स के अंदर हमने ये पॉइंट बेसिकली इसमें कहा था। नाउ मूविंग टू द फोर्थ factor, right, that is the soil or the edaphic factors, right. We talk about the edaphic factors. Edaphic factors are basically defined as the soil related factors. इसको हमने डिफाइन किया, soil related factors means ऐसे factors जो एक्चुअल में हमारे पास सॉइल के पूरे फॉर्मेशन के प्रोसेस से रिलेटेड है, राइट। कि हमारे पास सॉइल अगर हम कहेंगे बेटा, तो सॉइल इज बीइंग द वन जो न्यूट्रिएंट होल्डर है फॉर द प्लांट डेवलपमेंट, राइट, प्लांट ग्रोथ। तो हमने कहा सॉइल बेसिकली कैरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स टू बी अपटेकन by plant for the function of
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसी के साथ साथ इट एक्ट एज habitat for many lower animals and decomposers. बहुत सारे decomposers के लिए भी हमारे पास है, राइट. तो उसी के बेसिस पे अगर हम कहें तो हमने कहा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, राइट, उसे हम डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एज pedogenesis. Right, what we name the process as, we define the process as pedogenesis, right, which is called as a process of soil formation. Right, तो हमने कहा यहाँ पर, right, the process of soil formation is called pedogenesis. And उसी में ही हम प्रोसेस के अंदर pedogenesis को 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, राइट. इट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड अंडर 3 स्टेप्स, जहां सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ गया विच इज कॉल्ड एज वेदरिंग. तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास हो गया वेदरिंग. सेकेंड स्टेप इज बेसिकली humidification and mineralization, and the third step which is there defined as illuviation and illuviation. एक सेकेंड में इसको दोबारा से लिख दूं. This is I. Right, ये हम बेसिकली स्टेट करते हैं. नाउ बे तीनों प्रोसेस क्या हैं बच्चे? लेट्स टॉक अबाउट दिस. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द वेदरिंग, अगर अब हम वेदरिंग को स्टेट करते हैं तो हमने कहा वेदरिंग इज, क्या होता है वेदरिंग? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स. Decomposition of rocks, yes. No, decomposition नहीं. Decomposition नहीं. That's a breakdown of rock into the smaller particles. Weathering is never a process of decomposition, guys. Right? Decomposition अब थोड़ा difference यहाँ पर करना start करो. Right? कि हम इसे कैसे define करते हैं? तो हमने कहा breakdown of rock into the soil particles is called as a weathering, which can be performed by rain. Yes, can be performed as physical weathering because of the temperature, pressure, इसकी वजह से, जहाँ पर हमारे पास temperature, pressure is playing the role. फिर उसके बाद हम कहते हैं chemical weathering, chemical weathering because of the oxidants की वजह से हम define करते हैं, that will happen. Right, और उसी के साथ साथ, right, Rajul, right, we says that is the biological weathering, and biological weathering means because of the living organism, that is lichen and mosses performed process. Right, जहां पर याद है एक आपको मैंने point 11th में हमने पढ़ा था lichen being the pioneer of the Xerac succession. Right, they are the one जो basically soil formation कराते हैं, weathering के process को ease करते हैं, उन्हें हम define करते हैं. तो हमने कहा biological weathering के अंदर हम क्या कहते हैं, lichen are going to release the organic acid, ये organic acid को release करते हैं and catalyze the breakdown. ब्रेकडाउन को कैटलाइज करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज वेदरिंग. तो पहले आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया, उसको आपने डिफाइन किया है वेदरिंग. फिर उसी के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस कहते हो कि जो अब हमारे पास जितना भी डेड एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर है, दैट
plant and animal matter, which is now called as the detritus. इसका आप क्या करते हो? break down as catabolism, और वो catabolism करके you allow the release of the humus plus minerals. This is called as decomposition. इसे बच्चे आप decomposition define करते हो. So decomposition is a process, that's a breakdown, right, by the activity of किसकी basis पे हमारे पास, right, microbes के basis पे, bacteria और fungi के basis पे, right. तो हमने कहा with the help of the bacteria and fungi, right, bacteria and fungi के basis पे we will carry out this process and form the humus and mineral. This is the process called as the humification and mineralization, right, humus और mineral की development. समझ आ गया point सबको अच्छे से? दोनों step clear हुए, right? अब उसी के बाद eluviation and eluviation क्या होता है? Breaking too much. Everyone voice is clear or it's being breaking in between? Yes, Ma'am, guys. little bit breaking. Little bit breaking. Yeah. Okay, it's understandable, clear, very clear. Okay, just इसका एक बार just breaking voice लग रहा है, right? Just go and rejoin once again, guys. Just log out and log out, okay? Sorry, just rejoin once again, right? एक बार rejoin करो meeting, it will be fine then. Manchika, rejoin बच्चों. Okay, everyone. Fine. Right, because यहाँ से मेरे यहाँ से network connection बिल्कुल proper है बच्चे. Right. अब हमने कहा eluviation and eluviation क्या होता है? Right. Once explained from weathering. Okay, dear, मैं diagram में अभी समझाने वाली हूँ बच्चे. एक बार मैं इसका अभी diagram, horizon diagram बनाने वाली हूँ, तो उसमें क्या करूँगी? देखो, हमने कहा सबसे पहले process हमारे पास कौन सा आया? Right. धनंजय, rejoin once again बेटा. राइट, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास आया, दैट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स को हमने ब्रेकडाउन किया, राइट. और फिर उसके बाद जो हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर पे डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर प्रेजेंट था, व्हिच इज कॉल्ड डेट्राइटस, उसका डिकम्पोजिशन कराया, डिकम्पोजिशन करके ह्यूमस एंड मिनरल की फॉर्मेशन की. फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ मिनरल इज कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन. एंड देन उसके होने के बाद हमने इलुविएशन एंड इलुविएशन कराया. ये चलो मैं अभी आपको समझाती हूँ, पहले मैं इसमें हॉरिजन समझाती हूँ, क्योंकि अगर एक बार हॉरिजन क्लियर हो गया फिर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा. एवरीवन जस्ट टॉक सी अबाउट दी राइट सॉइल प्रोफाइलिंग. फिर ऊपर वाला जिसका रह गया नोट करने के लिए वो भी नोट कर लेना, डोंट वरी, राइट, ताकि पहले एक बार सॉइल प्रोफाइल क्लियर हो जाए फिर स्टेट करेंगे इसको. तो हमने कहा बच्चे सबसे पहले हमारे पास एट द बेस वी हैव द वन, this is called as the parent bedrock. ये हमारे पास parent bedrock है. This is the one which is called as the parent bedrock. इसका मतलब that is the heavier particles जिसकी आपको अभी weathering करानी है. You have to go for this weathering. आपको इसकी weathering अभी करानी है. इसकी weathering कराने के लिए आपने क्या किया यहाँ पर, इसको छोटे छोटे pieces में break करना शुरू कर दिया. You just break this into the small pieces. छोटे छोटे pieces में break करना शुरू कर दिया. जब आपने छोटे छोटे pieces में इसको break किया, again और बहुत small pieces आ गए, ये form that particular zone. उसी के बाद एकदम जो टॉप मोस्ट जोन है जहां पर प्लांट्स प्रेजेंट हैं, प्लांट्स हैं हमारे पास, राइट, वहीं पर हमारे पास सबसे पहले उसके नीचे एक जोन यहाँ प्रेजेंट है which has the undecomposed organic matter. पहले मैं एक बार बना लूं फिर इसको बनाना. It is being the one
which is undecomposed organic matter. यही undecomposed organic matter हमारे पास चेंज होगा into the partially decomposed organic matter के अंदर. It's get changed into the partially decomposed organic matter. फिर हमारे पास एक जोन आएगा which is being called as the humus zone. ये humus zone हो गया हमारे पास. और उसी के बाद next zone which is being there. wait बच्चे, अभी एक सेकेंड. Illuviation zone, and after that we have the illuviation zone. These are the smaller rock particles. These are the larger broken pieces of rock. Okay, now say everyone. We say बेटा, हमने कहा ये हमारे पास पूरी सॉइल प्रोफाइलिंग है. इस सॉइल प्रोफाइलिंग को अब हम कैसे समझते हैं, इसी के अंदर बहुत ध्यान से एक एक करके पॉइंट क्लियर करना है. हमने कहा सबसे पहले वी हैव द कंप्लीट पेरेंट बेडरॉक, राइट. सबसे पहले हमारे पास पेरेंट बेडरॉक प्रेजेंट है. यहाँ से हमने प्रोसेस कराना शुरू किया. To this we go for the first step which is called as weathering, जहां मैंने क्या कराया है, breakdown of rock into smaller particles. Smaller particles के अंदर हमने उसका ब्रेकडाउन करा दिया है, जिसको मैंने सबसे पहला प्रोसेस डिफाइन किया which is called as the weathering. इसे मैंने वेदरिंग का. अब उसके बाद हमारे पास ये जो अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है विच इज दी प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, मतलब ये डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट जो है मेरे पास बेटा ये प्रेजेंट है. ये डेड प्लांट और एनिमल वेस्ट का हम प्रोसेस करा रहे हैं विच इज कॉल्ड सेकेंड, डिफाइन एज decomposition, which is called as humification and mineralization. इसको हमने डिफाइन कर दिया. अब इसी ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में एक जोन बना which is called humus zone. Humus zone is the dark amorphous topmost nutrient rich soil, न्यूट्रिएंट रिच लेयर ऑफ सॉइल. ये सॉइल की वो लेयर है जिसमें पार्शियली डिकम्पोज्ड मैटर है और डार्क अमॉर्फस है. सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट है, प्लांट यहीं से न्यूट्रिएंट लेते हैं. तो जो भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट को अपटेक करना है, प्लांट यहीं से ऊपर की तरफ लेगा उसको. ठीक है. अब हमारे पास ह्यूमस के साथ साथ मिनरल्स भी रिलीज हुए. दीज डॉट्स आर बेसिकली मिनरल्स. अब मिनरल्स क्या करते हैं, मिनरल्स स्टार्ट लीचिंग डाउन, मिनरल नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं. तो व्हाट इज इल्यूविएशन? Illuviation is called as the leaching down of minerals. Leaching down of minerals from upper strata to lower strata. Upper strata से lower strata की तरफ leach down होना minerals का, that is called illuviation. और उसी के बाद उन सभी minerals का accumulation हो जाना, accumulation of minerals in lower zone is called as ILLUVI illuviation. तो ये मेरे पास illuviation zone वो बन गया which is actually the mineral rich zone. अब हम कहते हैं इसमें कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा आता है, फास्फोरस.
राइट। हम कहते हैं phosphorus is present at the deep, जिसकी वजह से mycorrhizal association की जरूरत पड़ती है so that the phosphorus can be pick up on the surface, right? So that's why, because phosphorus hang over into the eluviation and the smaller rock particles in between, that's why हमें mycorrhizal association की जरूरत होती है. Everyone got this point, right? So this is being defined as the, ये मेरे पास कौन सा zone हो गया? That's a third zone called eluviation and eluviation. Everyone got this thing? Pronunciation दोनों की same है, but spelling and meaning दोनों का अलग है, right? Yes guys, यहाँ तक का point clear हुआ सबको अच्छे से? Soil profiling समझ आ गया है? Yes everyone? Yes, ma'am. Good. Right. So this is what we state about the soil profiling. Right. और ये हमारे पास पूरा का पूरा process, right, for the condition of whole process, that is we define as the complete, right, soil के बारे में जो हम define करते हैं. इसके अलावा right, soil के बहुत सारे types वगैरह होते हैं, वो सब करने की जरूरत नहीं है, आता नहीं है, right, इसके अंदर. Right. So remember this point only. Right. यही point आपको यहाँ पर ध्यान रखना है. राइट, जो हमारे पास प्रेजेंट है. सॉइल के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल कंपोनेंट्स है, उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर बीइंग प्रेजेंट इन दिस. राइट, ये नोट हो गया? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा एक सेकेंड, बस यहाँ पर डेफिनेशन लिख दूं. राइट, लीचिंग डाउन ऑफ मिनरल्स is called eluviation, and deposition of minerals in lower strata is called eluviation. Yes everyone, note down the diagram. फटाफट से नोट डाउन करो. Then we'll start with this. उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका फैक्टर्स यहाँ आपके फिनिश होते हैं, and then we will talk about the rest part. Yes guys, completed यहाँ तक? Yes, ma'am. Good. Okay everyone. Now let's continue about, देखो अब हमने फैक्टर्स पढ़े. हमने कहा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, हमने वो देख लिया. हमने कहा लाइट का क्या इफेक्ट होता है, वो समझ आ गया. वाटर का क्या इफेक्ट है, वो समझ आ गया. सॉइल का क्या इफेक्ट है, वो समझ आ गया. अब हमने कहा ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स क्या है. राइट, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म towards abiotic or environmental factors. Now let's state about the condition over here about the response of organism. Okay, तो अब अगर मैं response को define करूं, तो I'll say first of all, ये curve अब ध्यान से समझना है. This is the external environmental factor and this is the internal environment of organism. मैंने ये कहा, let us suppose आप internal environment, that is let's suppose मैं यहाँ पर अगर temperature की बात करती हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर ये फिक्स है A पॉइंट. आपने एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर जब चेंज करते चले गए, आप यहाँ टेम्परेचर का लेवल बढ़ाते चले गए बाहर के एनवायरमेंट में, अगर ऑर्गेनिज्म में कोई भी उसके इंटरनल एनवायरमेंट में चेंज नहीं आया, तो ये ऑर्गेनिज्म मेरे पास कहलाए जाएंगे regulators. What we name them as regulators, that is they can thermoregulate
या फिर osmoregulate their internal constant, जो अपने इंटरनल कांस्टेंट को फिक्स रखेंगे टेम्परेचर के बेसिस पे, या आप इसको पीएच के बेसिस पे लो, मर्जी आपकी, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका इंटरनल कांस्टेंट इतना था, जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स बढ़ाते चले गए, इंटरनल फैक्टर भी चेंज होते चले गए, इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहा, इसको हम नाम देते हैं conformers. What we name them as, beta? Conformers. That is, they cannot maintain internal constant. Right? They cannot maintain internal constant. लेकिन कुछ मेंबर ऐसे हैं जो अपने कुछ टाइम तक तो चेंज करते हैं, बाद में at a point of time regulate हो जाते हैं. Then go for the regulation. Right? They are called as the partial regulators. Everyone got this curve? Curve समझ आया ये वाला अच्छे से? Yes, everyone. Yes, ma'am, dad. Good. Right. तो अब हमने Yes, ma'am. किस तरीके से अब हमने इसे स्टेट किया? तो we say the group is number first. A group पे आ जाते हैं. First one is defined as the regulators. Regulators का मतलब can maintain their internal constant through homeostasis. What is homeostasis? अभी बताती हूँ अंकुर, एक बार just wait बच्चा. What is homeostasis? First of all, tell me that. Can maintain their internal constant. Maintain their internal constant through homeostasis. Homeostasis में हम क्या कहते हैं? That is internal thermoregulation और osmoregulation potential. इनके पास है Okay, just a second guys, एक minute, एक second. Okay everyone, so now moving to this, right, internal regulation कर सकते हैं, right, homeostasis से, right, और उसके बाद हमारे पास इसका मतलब they cannot
change their internal constant with respect to changes in external environment. एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कितना भी चेंज होता रहे, ये अपने इंटरनल कांस्टेंट को चेंज नहीं करेंगे. टेल मी गाइस, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? आर दे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड? कौन से लग रहे हैं? शुड दे बी वार्म ब्लडेड और शुड दे बी कोल्ड ब्लडेड इन नेचर? Warm blooded. Very good. Can I say all mammals, birds, and some of the invertebrates? Function as regulators. तो regulators का मतलब बचा, बाहर कितना भी चेंज होता रहे, they won't change their internal constant. मतलब अपना maintain, अपने आप को कैसे regulate करेंगे? अगर मैं कहूँ how they regulate themselves, right? तो they can regulate themselves. Why? Because they can maintain the internal constant. Like अगर हम अपनी body की बात करें, तो हमारे पास hypothalamus is being the thermoregulatory center. Remember, right? पढ़ते हैं ना 11th के अंदर. Hypothalamus अगर हमारे पास thermoregulatory center है, तो हम क्या कहते हैं? Basically during the summer sweating होना, right? In order to maintain the body constant को maintain करने के लिए. During the winter shivering होना हमारे पास, वो भी क्या body constant को maintain करने के लिए. तो we have the specific center in our body ना, which is called hypothalamus, which will maintain this, right? तो इसीलिए हम इसे नाम क्या देते हैं? This organism is being called as the regulator. Got this point everyone? Meaning समझ आ गया अब regulator का सबको अच्छे से, right? Now अब भी क्लियर हुआ अंकुर बच्चा? Right. Second अब हमारे पास आए confirmers. Confirmers का मतलब, right, cannot maintain their internal constant. अपने internal constant को maintain कर ही नहीं सकते. Cannot maintain their internal constant but can change their, अपने internal को change करते रहेंगे, internal environment with respect to environmental fluctuations. Environmental fluctuations के हिसाब से अपने internal environment को vary करते रहेंगे, right? We will define them as the conformers. इन्हें हम conformers कहते हैं. Now tell me कौन से organisms आएंगे इनके अंदर, right? What should be the example of the conformers? Conformers का example क्या होगा? Quickly. Cold-blooded. Cold-blooded, very good, right? Can I say majority of organisms on the earth are conformers? Majority of organisms on earth are conformers. Very good. Yes. Right, they are called as the conformers. Right, majority हमारे पास जिसमें से member कौन से हो गए? All plants, सारे के सारे plants. Majority of invertebrates, some of the chordates, and lower organisms like bacteria, fungi, protozoans, ये सब के सब. तो majority members हमारे पास conformers. अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक organism अपना इतना इंटरनल कांस्टेंट अपना मेंटेन नहीं कर सकता, बार बार अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करता रहेगा फ्लक्चुएशन के साथ, तो क्या ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टी बन जाएगा? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना चेंज होना, इतना वेरिएशन आना तो कांस्टेंट नहीं है ना, इतना वेरिएशन आना ठीक भी नहीं है. तो उसको ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो अपने आप को रेगुलेट कर लेगा. कैसे करेगा वो हम देखते हैं. तो वी से some of the methods adopted by organism to regulate their internal constant. As अब वो क्या है हमारे पास? Let's talk about that. तो अब अगर उन दो की बात करते हैं, तो हमने कहा सबसे पहली मेरे पास एक्टिविटी आई
that is called suspension. And second मेरे पास आ गया migration. क्या मीनिंग हुआ बेटा? लेट अस सपोज अगर बाहर की कंडीशन बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो चुकी है, ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस अनफेवरेबल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को फिक्स नहीं कर पा रहा, तो क्या ऑर्गेनिज्म अपने आप की अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर ले? राइट, सो हमने कहा यहाँ पर सस्पेंडिंग द ग्रोथ and reducing the rate of metabolism ग्रोथ को सस्पेंड कर देगा, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा. तो हमने कहा सस्पेंडिंग द ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कैन बी अ स्ट्रैटेजी टू सर्वाइवल की एक स्ट्रैटेजी बन सकती है. जैसे कि एग्जांपल्स पे आते हैं. नंबर फर्स्ट, आपको याद है बच्चे पेरिनेटिंग स्पोर फॉर्मेशन, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर वो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एंडोस्पोर्स. In fungi, we talk about chlamydospores, oidea. In algae, we talk about hypnospores and aplanospores. याद आ रहा है 11th का? फाइन, राइट. तो पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना. अब अगर पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बने तो आप क्या करेंगे? राइट, हाउ इट विल मूव ऑन. राइट, तो हमने कहा सेकंड, टू गो फॉर द क्विंसेंस इन द प्लांट. रिमेंबर क्विंसेंस और डोरमेंसी में डिफरेंस पढ़ा था हमने. क्विंसेंस इन द प्लांट व्हिच कैन लीड टू सीड और बड डोरमेंसी. ग्रोथ नहीं होने देंगे, सीड से आगे जर्मिनेशन नहीं होने देगा. राइट, तो क्विंसेंस हो गया प्लांट के अंदर. एंड वी कैन से राइट डाइपॉज इन zooplankton's और एनिमल्स. zooplanktons और एनिमल्स के अंदर टेम्पररी सस्पेंशन. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Ma'am, there was nidoblast also. नीडोब्लास्ट वो एनिमल्स के अंदर है ना, वो तो टेंटेकल्स के लिए होता है. राइट, नाइडेरियंस के अंदर. राइट, तो नीडोब्लास्ट इज बेसिकली नॉट एज अ सस्पेंशन. नीडोब्लास्ट तो आप कहते हो ना एक डिफेंस ऑर्गन होता है हाइड्रा के अंदर. रिमेंबर? Okay, ma'am. Yes, ma'am. वो stinging होता है ना इसलिए. गॉट द पॉइंट? ओके. Yes. राइट, तो यहाँ तक समझ आया. अब हमने कहा another thing, एक एनिमल्स के अंदर एक चीज और दिखती है which is called suspension with respect to time. टाइम के हिसाब से. that is hibernation and estivation. right. hibernation क्या होता है? can I say winter sleep? Winter sleep. Yes, ma'am. right. and estivation is the summer sleep. Summer sleep. estivation प्लांट वाला नहीं है, ठीक है ना, ये एनिमल वाला समर स्लीप. राइट, तो ये हमारे पास सस्पेंशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ को क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है. करेक्ट. राइट, नाउ माइग्रेशन. सेकंड, अब आ जाते हैं माइग्रेशन पे. जब हम माइग्रेशन डिफाइन करते हैं तो वी कैन से ईदर द ऑर्गेनिज्म विल शो द टेम्पररी माइग्रेशन. जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो शिमला चले जाते हैं ना घूमने. राइट, और सम विल हैव द permanent migration.
राइट. परमानेंट माइग्रेशन तो ऑर्गेनिजम्स कर ही लेते हैं, स्विचिंग कर ही लेते हैं. बट टेम्पररी माइग्रेशन, इसके एग्जांपल याद है? साइबेरियन क्रेन्स एवरी ईयर विजिट कैलिडो नेशनल पार्क, राइट. तो कैन आई स्टेट द एग्जांपल? राइट, एग्जांपल मेरे पास कौन सा चला गया? दैट्स द राइट साइबेरियन क्रेन्स. हाँ एग्जैक्टली धनंजय. राइट, उसी के बाद फिशेस. फिशेस के अंदर कैटाट्रॉमस एनाट्रॉमस मूवमेंट होती है ना, राइट. वो हो गई हमारे पास मूवमेंट, राइट. तो दैट इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज द माइग्रेशन. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? राइट. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, टेम्पररी सस्पेंशन किसके लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. और ये भी किसके लिए करते हैं? फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. Everyone got this thing completed? Right, so these are the things which we will do as a suspension, migration. Right, ये हमने दो strategies पढ़ी जिसकी वजह से organism survive कर सकता है. Right, तो अब अगर मैं पूछूं majority of the organism on the earth are conformers or regulators? Conformers. 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 Majority of the organisms on the earth are conformers. Right, some of them are the regulators which can maintain their internal constant by homeostasis. Right, homeostasis के through maintain करेंगे internal constant को. And some conformers can either suspend or migrate in order to regulate the internal constant. Clear everyone? Now the another response and the another thing which we are going to do. अब हमने कहा कुछ ऐसे भी organisms है conformers जो ना तो सस्पेंड कर सकते हैं ना माइग्रेट कर सकते हैं. अब उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे हैव टू डू? राइट, उन्हें क्या करना चाहिए? वो क्या ऐसा करे कि सरवाइव कर लें? तो वो सरवाइव करने के लिए क्या शो करते हैं? एडाप्टेशंस. व्हाट दे आर गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू फॉलो द एडाप्टेशन. से एडाप्टेशंस करते हैं. अब हमने कहा एडाप्टेशंस क्या होते हैं और कैसे हम डिफाइन करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट द एडाप्टेशंस नाउ. Okay guys, now adaptations are called as the genetically fixed changes in organism morphology, anatomy, physiology, biochemical constituents or behavior. In order to survive under unfavorable condition and grow with maximum growing potential. So we say adaptation is what? Genetically fixed changes in organism morphology, anatomy, physiology, biochemical constituents, behavior. इन सब में changes होना ताकि वो unfavorable condition में अपने आप को survive कर सके और proper growing potential भी show कर सके. Now tell me guys, why I name it as genetically fixed? What's the meaning of this? Yes everyone. What's the meaning of genetically fixed changes? ये कहने का क्या मतलब है? Quickly. Means the changes which are being occurring beta, वो changes
genetical, okay. The changes which are inheritable, वो changes जो inheritable हैं. ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने आज इस जनरेशन में कोई एडाप्टेशन कराया एंड देन यू विल वेट कि शायद अगली जनरेशन में टेम्परेचर चेंज हो जाए, टाइम का चेंज हो जाए, तो उसके हिसाब से आपका एडाप्टेशंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नो ना, जो एडाप्टेशंस हुई हैं वो आगे भी पास ऑन होंगी, राइट. तो ऐसी एडाप्टेशंस को we define as a genetically fixed change. समझ आया पॉइंट? Now the very first we will talk about the plant adaptations. फिर बात करूंगी एनिमल्स की. तो प्लांट रिलेटेड adaptations. Let's state about that. बहुत ध्यान से अच्छे से समझना है इसको. प्लांट रिलेटेड एडाप्टेशंस. नंबर फर्स्ट, ज़ेरोफिटिक प्लांट्स. ओके एवरीवन, नाउ बताते जाओ, 11th में सब पढ़ चुके हैं क्विकली. ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो ज़ेरोफाइट्स में ग्रो कर रहे हैं, मींस जो वाटर स्कैर्सिटी के एरिया में ग्रो कर रहे हैं, वाटर स्कैर्सिटी एरिया में ग्रो कर रहे हैं प्लांट, इनमें क्या क्या एडाप्टेशंस हैं? मैम हाई क्यूटिकल डिपोजिशन. फाइन. इसके अलावा थिक क्यूटिकल, ठीक है. तो सबसे पहले आ जाती हूँ मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस पे. मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंज होगा? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल सही जा रहे हो. Can I say, सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं, मैं पूछती जाऊंगी, मुझे Leaves converted to spines and thorns. वेरी गुड, राइट. अब रूट्स की अगर मैं बात करूं तो कैन आई से डी फीडर रूट सिस्टम? यस मैम. राइट, डी फीडर रूट सिस्टम विद हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी, हाई पेनिट्रेशन कैपेसिटी एंड मल्टीपल ब्रांचिंग. ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, पेनिट्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए. उसको हम डिफाइन करेंगे पहला मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज दी, इससे हम डिफाइन करते हैं फ्रियाटोफाइट्स. व्हाट वी नेम इट एज दी, हम इसे नाम देते हैं बेटा फ्रियाटोफाइट्स, राइट. फिर हमने कहा सेकेंड एडाप्टेशन इज स्टेम इज मॉडिफाइड. अब अगर ये ध्यान आ रहा हो सबको, तो स्टेम इज मॉडिफाइड एज ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. क्या नाम दिया था इसको हमने? ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. सोचो फटाफट. नो नो अनुष्का. फाइलोक्लेड, रिमेंबर फाइलोक्लेड एंड क्लेडोड. क्लेडोड इन द केस ऑफ द एस्पैरागस के अंदर, and phylloclade in the case of the Opuntia, Pricklypear cactus, Euphorbia, इनके अंदर दिया था ना ये बेस्ट एडाप्टेशन हमने यहाँ पर, राइट. सो वी डिफाइन एग्जैक्टली, राइट. फिर उसी के बाद हमने कहा थर्ड वन, लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइन्स. लीव्स को स्पाइन्स की तरह, थॉर्न्स नहीं, स्पाइन्स, राइट. टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए? ट्रांसपिरेशन लॉसेस. तो ट्रांसपिरेशन लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमने लीव्स को मॉडिफाई कर दिया स्पाइन्स में, राइट. फिर उसी के बाद एक और था, पेटियोल का मॉडिफिकेशन भी पढ़ा था हमने. पेटियोल इज मॉडिफाइड एज ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर called as, बताओ, स्टिप्यूल नहीं, फाइलोड. भूल गए सब 11th का. फाइलोड फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. पढ़ा था ना, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं. राइट, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट? मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन समझ आई,
राइट अब इसी के बाद टॉकिंग अबाउट एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस. एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस क्या होती है हमारे पास? अब एनाटॉमी में कैसे चेंज हम करते हैं? एक कभी आपने जो बताया presence of thick cuticle on the epidermis, epidermal layer. Now tell me everyone, should the xylem is going to be abundantly present, strongly developed, xylem की development, right? Yes. तो हमने कहा xylem should be strongly well developed with high mass of mechanical tissue. स्क्लेरेन्काइमा कोलेन्काइमा ज्यादा देंगे, मैकेनिकल टिश्यू का अमाउंट इसके अंदर ज्यादा देंगे. अच्छा स्टोमेटा कैसा कर दें? Should stomata be sunken or going to be upraised? Sunken. Sunken, very good. Sunken. So we say sunken stomata with photoactive कर दे, scotoactive कर दे. याद आ रहा है कैम्प प्लांट्स? Scotoactive. Right. Photoactive. Photoactive nature, that is open during, कब खुलेगा? Night. Night, very good. Night. Open during night, right? तो हमने कहा रात के टाइम में हम इसे खोलेंगे स्टोमेटा को, and open during night. तो that is the scotoactive stomata. Then we will say physiological adaptation. अब physiological adaptation हमने क्या की? Means क्या change किया इसकी physiology में? तो remember guys, physiological adaptation CAM pathway सबसे main, right? We stated about the CAM pathway, right? That is acidogenesis during night. Acidogenesis तभी मैंने कहा था ecology ऐसी है जहाँ 11-12 सब रिवाइज होगा. During night with CO2 fixation. Sorry, CO2 fixation के with carboxylation by, कौन करेगा कार्बोक्सिलेशन रात में? रुबिस्को या पेपकेज? पेपकेज, right? And deacidogenesis during day, जहां पर कार्बोक्सिलेशन बाय रुबिस्को. That's the basic point for the physiological adaptation. Clear everyone? Right, तो ये हमारे पास हो गया xerophytic adaptation. अब समझ आया सबको point? Right? Right, तो xerophytic adaptation अच्छे से, कोई डाउट इसके अंदर? No, ma'am. Fine. Now, biochemical adaptation, last one, xerophytes का. Biochemical adaptation. Presence of spatial denaturation resistant or heat resistant or heat shock proteins called chaperones or chaperonins to prevent denaturation of functional protein
at high temperature. हाई टेम्परेचर पे फंक्शनल प्रोटीन के डीनेचुरेशन को बचाने के लिए इसके पास स्पेशल हीट शॉक प्रोटीन्स हैं, इसके पास स्पेशल चेपरोनिन्स हैं, राइट, जिसे हम डिफाइन करेंगे, जो प्रिवेंट करेंगे डीनेचुरेशन एट हाई टेम्परेचर. समझ आया पॉइंट यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड? तो ज़ीरोफिटिक एडाप्टेशन क्लियर हो गया है अच्छे से? फाइन. यस मैम. चैपरॉन से याद है, हमने राइबोसोम में भी पढ़े थे. प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं, जो डीनेचुरेशन से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ halophytic plants. Now halophytic plants जो कहां पर रहते हैं? In the salt rich environment or the saline environment, right? They are going to be found, right? They are called exactly, right, halophytic plants. अच्छा, अब halophytic plants के अंदर best example अगर याद हो तो we talk about mangroves, rhizophora, स्पेसिफिकली अबाउट मैंग्रोव. मैंने एग्जांपल पहले याद इसलिए दिला दिया ताकि आपको अडैप्टेशन याद आ जाए. फटाफट से बताओ मॉर्फोलॉजिकल अडैप्टेशन क्विकली गाइस. जल्दी से. मॉर्फोलॉजिकल अडैप्टेशन. Pneumophotic roots. Nematophores. Right. Number first, presence of respiratory roots called pneumatophores as taproot modification. ब्रीदिंग रूट्स कहते हैं ना, ऑक्सीजन को कैरी अप करते हैं, राइट. नीट 2019 क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड इन एग्जाम. फाइन, राइट. तो न्यूमेटोफोर्स मेक इट रिमेंबर. और न्यूमेटोफोर्स के अंदर प्रेजेंस क्या होती है? दे हैव द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोथोड्स. द न्यूमेटोथोड्स आर कॉल्ड एज द रूट lenticels to carry out gaseous exchange. सबसे मेन पॉइंट है ये इसका, gaseous exchange को परफॉर्म करने के लिए. फाइन. अदरवाइज स्टेम और लीफ नॉर्मल, राइट. ग्रीन लीव्स होंगी, राइट. सक्यूलेंट स्टेम होगी. दैट्स बीइंग द वन नॉर्मल थिंग. मॉर्फोलॉजिकल सबसे मेन ये एडाप्टेशन याद रखनी है. उसी के बाद एनाटॉमिकल एडाप्टेशन. अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, राइट, कोई भी अगर हेलोफिटिक प्लांट है जो सलीन एरिया में ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर हम आपके क्या कहेंगे? क्यूटिकल दे दे, उसके अंदर थिक क्यूटिकल प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वाटर का लॉस तो अभी भी हमें नहीं कराना ना, राइट. तो हमने कहा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन द स्टेम एंड द लीफ एज वेल, ताकि मिनरल का डिपोजिशन इसके ऊपर भी ना हो, राइट, लीफ के ऊपर, ताकि पोर्स की ब्लॉकिंग ना हो. ऑन द स्टेम एंड लीव्स के ऊपर हमने क्या कर दिया है यहाँ पर? प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल, राइट. उसी के साथ साथ वैस्कुलर टिश्यू को वेल डेवलप कर दें, राइट. और हमारे पास स्क्लेरेनकाइमेटस कंटेंट थोड़ा इंक्रीज कर दें, राइट. तो प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू, ताकि उसको स्ट्रेंथ मिली रहे, राइट. तो वेल डेवलप्ड मैकेनिकल टिश्यू हमारे पास अच्छे से डेवलप हो, राइट. और उसी के साथ साथ एंड वैस्कुलर टिश्यू, और बहुत अच्छे से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब भी कर सके, right. That's the point which we will define as the anatomical adaptation. That's for the halophytes, right. Now moving to the next one, third category, for the hydrophytes. Hydrophytes कहाँ रहते हैं? In the water abundance. अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्लांट्स रह रहे हैं वाटर अबंडेंस के अंदर. Tell me guys, adaptation फटाफट से. Should I have to give the well developed roots in them?
क्या वेल डेवलप रूट्स देने की जरूरत है या काम चल जाएगा अगर नॉर्मल रूट्स भी दे दे इसको? नो मैम, नॉर्मल नो No. राइट, नॉर्मल रूट्स भी दे दे तो हमने कहा वेल डेवलप रूट देने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ हमने कहा राइट रूट हेयर्स या रूट कैप देने की जरूरत है। रूट हेयर्स को अगर हटा दे तो भी चलेगा ना, राइट, क्योंकि रूट हेयर्स अगर नहीं भी Yes, देंगे ma'am. तो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सकता है इसके अंदर, राइट। तो हमने कहा यहाँ पर लेस डेवलप्ड रूट सिस्टम with absence of root hairs but presence of root pockets, root pockets present होते हैं for binding and floating, राइट। रूट हेयर्स की जगह रूट पॉकेट्स होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं एपिडर्मिस की जिन्हें हम रूट पॉकेट्स कहते हैं। इन द केस ऑफ द पिस्टिया, लेमिना, इनके अंदर हमें मिलते हैं ना, राइट, दैट्स फाउंड एज द मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन। उसी के बाद एक टाइप की रूट्स मिलती है व्हिच आर कॉल्ड फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स एज एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन in free floating plants for easy movements, ताकि बड़े आराम से मूवमेंट हो सके, उसके लिए प्रेजेंट है एज एन एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, राइट। नाउ जाइलम वेल डेवलप कर दे या लेस डेवलप कर दे, जाइलम पे तो चलो एनाटॉमी पे आऊंगी, रुको अभी, राइट। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी के अंदर और कोई पॉइंट, क्यूटिकल दे या ना दे, क्यूटिकल हटा दे, ठीक है, राइट। क्यूटिकल हटा भी देंगे तो भी चलेगा ना हमारे पास, अगेन एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, राइट। उसी के साथ साथ एक पॉइंट और होता है, दे शो हेट्रोफिली, राइट, और डिफरेंट टाइप की लीफ शो करते हैं, लीफ टाइप शो करते हैं, राइट। तो दे शो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, फाइन एवरीवन, राइट। अब मॉर्फोलॉजिकल की जगह एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, तो हमने सबसे अच्छा सबसे मेन एनाटॉमिकल एडाप्टेशन कोई बताओ, और तो सब एक दो मैं बताऊंगी, एक सबसे मेन होती है इसके अंदर, एक टाइप के टिश्यू होते हैं जिनका काम होता है बायंसी प्रोवाइड करना। कौन से टिश्यू? हाँ, राइट, इट्स बीइंग द वन व्हिच इज कॉल्ड एरेनकाइमा, राइट, जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, एरेनकाइमा सेल्स, राइट। तो वी डिफाइन इट एज द सबसे मेन पार्ट, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा सेल्स in abundance to provide buoyancy and flotation, ठीक है, राइट, गॉट दिस पॉइंट। उसी के साथ सेकेंड वन, एब्सेंस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल देने की जरूरत नहीं है। वैस्कुलर टिश्यू as xylem is poorly developed. Got this point? Right? अब एक मेन चीज इसके अंदर, एपिस्टोमैटिक लीव्स, फटाफट से बताओ इसका मीनिंग। यस गाइस,
Ma'am, stomata on upper side of leaf. Very good. Right. So stomata on adaxial side of the leaf. Adaxial abaxial याद है? लीफ Yes, का जो yes, अपर ma'am. साइड होती है उसे एडेक्सियल कहते हैं. एडेक्सियल साइड पे रखेंगे तो वाटर के अंदर नहीं जाएगा ना, और अगर वाटर के अंदर नहीं होगा तो बड़े आराम से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है. राइट. तो हमने कहा टू फैसिलिटेट gaseous exchange. Got this point now? Understood? Right. So ये हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट हो गया फॉर दी प्लांट्स. फाइन. आगे बढ़ो एनिमल्स पे. सिंपल सा पार्ट है बच्चे, सब पहले हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार लिस्ट डाउन किया इन चीजों को. राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. दैट्स फॉर द animals. Now, moving to adaptation for animals or animal adaptations. अब अगर एनिमल एडाप्टेशंस पे आती हूँ तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ आ जाता है. That is in the case of the number first for water scarcity. Desert animals. Now tell me guys, water scarcity के लिए desert animals के अंदर तो सबसे basic एक adaptation present है. In case of कंगारू रैट. कोई बताओ इसके अंदर क्या होता है? Metabolic water. हाँ, वेरी राइट. हाँ, तो हमने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक वाटर बाय किसके थ्रू मेटाबॉलिक वाटर बनाएंगे? Increasing oxidation, which is beta oxidation of fatty acid. Fatty acid के beta oxidation के रेट को बढ़ा के कंगारू रैट के अंदर excess metabolic water बनता है. Second one, concentration of urine to prevent very good water loss. ये दो पॉइंट्स हो गए. राइट. उसके अलावा presence of water storage cavity. Remember hump, HUMP, Hump of camel. camel. Right. So water storage cavity हमने बनाई है. Right. So they are being the one for the case of the water scarcity. अब समझ आया सबको point? Right, Saloni. Complete बच्चे? Right. Now talking about the next. Phenotypic plasticity. अच्छा, एक पॉइंट उसमें ऊपर रह गया, रुको इसी के साथ लिस्ट कर लेते हैं. इसी में ऊपर डेजर्ट लिजार्ड. सुने डेजर्ट लिजार्ड के बारे में? इन द केस ऑफ डेजर्ट लिजार्ड behavioral adaptation is observed. Behavioral adaptation का मतलब when it require the heat, जब बॉडी कम हो जाती है, हीट चाहिए होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? राइट. बाय डूइंग द कंप्लेन हमने कहा यहाँ पर इसके अंदर. राइट. इसमें बेसिकली क्या कहते हैं? बिहेवियरल एडाप्टेशन का मतलब जब बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे it is doing what? Right, it will move out of the hide for sun basking. सन बास्किंग का मतलब हीट लेने के लिए हाइट से बाहर आ जाता है. राइट. लेकिन
when temperature increases, move back. समझ आया point? This is called change in the behavior. इसे behavior में change का नाम देते हैं. Right? This is called behavioral adaptation. Got this point, everyone? Right? Behavioral adaptation. Right? Then we will say phenotypic plasticity. Right? Phenotypic plasticity is being the one. Right? जो हम define किसको करते हैं? Right? कि हमारे पास change होना phenotype में for adaptation to the ठीक है. तो अब हमने कहा यहाँ पर इसे हम कैसे इसको स्टेट करेंगे फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी को. राइट, सो वी जस्ट डिफाइन फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. एक सेकेंड. ओवर हियर लाइक एट हायर एल्टीट्यूड्स. अच्छा, कभी ऐसा होता है ना जैसे बिल्कुल एकदम टॉप पे जाते हैं जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. राइट, व्हेन ऑक्सीजन लेवल डिक्लाइन तो हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं. राइट, वी से ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज इनिशिएटेड. एल्टीट्यूड सिकनेस है ना. हाँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इनिशिएट हो जाती है. एनॉक्सिया. हाँ, एनॉक्सिया हो जाता है. उस टाइम पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है. राइट, तो उस टाइम पे एडाप्टेशंस क्या होते हैं. Right, they adopt adaptations favored by human body. number of RBCs. क्या बढ़ा दें हमारे RBCs number बढ़ा दें? increase. Right, so we should have the increase in the number of RBC. RBC के नंबर को increase कर देते हैं. तो हमने कहा सबसे पहले increase in number of RBCs. आरबीसीज के नंबर बढ़ गए. अब आरबीसी के नंबर बढ़ने के बाद राइट सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या हो जाएगी कि हमने कहा हमने आरबीसी के नंबर बढ़ा दिया. अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर दें. ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द आरबीसी. ऑक्सीजन नहीं, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ आरबीसी. डिक्लाइन. वेरी गुड. डिक्लाइन बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ आरबीसी. आरबीसी की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा दें और ऑक्सीजनेशन रेट को क्या कर दें. इंक्रीज्ड. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट. दिस इज कॉल्ड एज द एल्टीट्यूड सिकनेस. एल्टीट्यूड सिकनेस को ट्रीट करने के लिए फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी इन द बॉडी. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट. पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से. मैम बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देते हैं, कम करते हैं. बाइंडिंग एफिनिटी कम बचे, क्योंकि बाइंडिंग एफिनिटी कम कर दोगे तो इसका मतलब उसकी CO2 से कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी. तो अगर सिर्फ ऑक्सीजन ही अवेलेबल है तो एट लास्ट इट हैज टू बाइंड टू द ऑक्सीजन ओनली. इसे सिर्फ ऑक्सीजन से ही बाइंड करना होगा. समझ आया पॉइंट. दैट इज व्हाट डिक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी. ठीक है, कंप्लीटेड यहां तक. Now, animals के अंदर we say there is another thing कि कुछ rules होते हैं जो define करते हैं modification influenced by temperature. Right, तो हमने कहा now the modification. Allen's rule सुना है सबने. Influenced by temperature. Anyone who can explain me? A part. बर्गमैन्स रूल. फिर एलेन्स रूल पे भी आती हूँ. बर्गमैन्स रूल क्या कहते हैं. बर्गमैन्स रूल डिफाइन करते हैं कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. कलर क्यों नहीं चेंज होता इसका. नाउ द वार्म ब्लडेड एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, इनका बॉडी साइज क्या होता है बेटा. लार्जर बॉडी साइज in cold climate. Cold climate में body size ज्यादा है then hotter area. Hotter area की बजाय cold climate में इनका body size क्या है, ज्यादा है. That is called as a Bergmann's rule. इसे हम क्या कहते हैं, Bergmann's rule.
राइट फिर हमारे पास बी जाता है which is called as a wrench rule. ये रूल सुने zoology के अंदर पढ़े evolution में. wrench rule में हम क्या डिफाइन करते हैं? कोल्डर क्लाइमेट के अंदर बर्ड्स के पास, स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए बेटा, ठीक है, बर्ड्स के पास क्या प्रेजेंट है? बर्ड्स हैव द नैरो एंड एक्यूमुलेट विंग्स, नैरो एंड एक्यूमुलेट विंग्स, एक्यूमुलेट मीन स्मॉल साइज, ठीक है, लेकिन वहीं पर ब्रॉडर विंग्स हो गए उसके पास, सॉरी, broader wings in warmer area. Warmer area में उसके पास क्या प्रेजेंट है? broader wings. So narrow और accumulate wings कहाँ मिलेंगे बेटा? colder climate में. broader कहाँ मिलेंगे? हमारे पास warmer. अब इसका मीनिंग मुझे समझाना अच्छे से, राइट, ये जो मैं कह रही हूँ आपको. और सी रूल हमारे पास आता है एलेंस रूल. एलेंस रूल क्या कहता है? राइट, कि बेसिकली अगर देखा जाए जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है, body extremities, that is the size of ear pinna, cartilages, इन सबका साइज जो है हमारे पास are reduced in size, or we can say shorter in cold climate देन हॉटर एरिया. हॉटर एरिया की बजाय कोल्ड क्लाइमेट में इनका साइज क्या हमारे पास छोटा है, राइट. क्यों होगा ये? क्या समझ आ रहा है इन तीनों रूल से? एनीवन? व्हाट दीस थ्री रूल्स आर एक्सप्लेनिंग? सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा. सरफेस एरिया कम, यहाँ पर टेम्परेचर लॉस कम होगा. बिल्कुल, बॉडी हीट, और वी कैन से body heat or loss can be prevented by maintaining surface area of exposed part. जो exposed part है उसके surface area को maintain किया जाए, right. तो हम यहाँ पर कहेंगे larger the surface area, line complete करो. Larger the surface area, more the heat loss, less the heat loss. Yes, everyone. बिल्कुल, उतना हीट लॉस ज्यादा. जितना रिड्यूस कर दोगे सरफेस एरिया उतना हीट लॉस क्या हो जाएगा? कम, राइट. तो गॉट दिस पॉइंट? समझ आ गया सबको अच्छे से एनिमल्स के बारे में, अडैप्टेशंस, राइट. नाउ इन एंटार्क्टिक फिशेस, एंटार्क्टिक फिशेस में क्या होता है? एंटार्क्टिक फिशेस को टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे आ जाते हैं. हाँ जी बेटा. मैम तो आपने बताया कि कोल्डर एरिया में लार्जर बॉडी टाइप मिलती है, लार्जर बॉडी साइज मिलती है, तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया. नहीं बेटा, कोल्डर एरिया में हमने क्या कहा है, राइट. वार्मर, देखो इसने वार्म ब्लडेड एनिमल, लार्ज बॉडी साइज इन द कोल्डर एरिया, बॉडी साइज बढ़ा दिया, सरफेस एरिया कम हो गया. बॉडी साइज का मतलब हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, सरफेस एरिया कम हो गया, उसका फंक्शनल एरिया कम हो गया, ठीक है. फिर वहीं पर बर्ड्स के अंदर नैरो विंग्स कर दिए कोल्डर क्लाइमेट के अंदर, और फिर बॉडी एक्सट्रीमिटीज का साइज क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया. अब समझ आया क्या? बर्गमैन्स रूल ने वार्म ब्लडेड के लिए बोला है बेटा, जो होम्योस्टैसिस कर सकते हैं, ठीक है. नाउ एंटार्क्टिक फिशेस का बताओ. एंटार्क्टिक फिशेस में किसकी प्रेजेंस होती है? Anti-freezing proteins. Very good. Antifreeze proteins, right, which prevent freezing at low temperature. ये कौन सा adaptation हुआ? Can I say biochemical adaptation? Fine. Right.
So this is what is being defined as the whole part we discussed. Clear everyone? अब बैक्टीरिया के adaptations पढ़ाऊंगी next time और population interactions. Completed यहाँ तक का task सबको अच्छे से? Everyone? Done है? Yes, ma'am. यहाँ तक complete हो जाएगा अच्छे से? Good. Right. So this is where we are winding up the session today's. Right. अब class जल्दी खत्म हो जाती है ना, वरना तो काम ज़्यादा भी हो जाए. कोई बात नहीं, चलो. Right. No worries. Okay, guys. So completed यहाँ तक. So in the coming class, we'll complete with the organism and population. Right. Revise the topic till here, everyone. Right. अच्छे से यहाँ तक का revise कर लेना, complete करना है part को. And we'll meet you in the coming class. Bye bye. Take care.